اور اس کی حکومت پر جیسی بھی حکومت ہے وہ ایک الگ بات ہے. ہم تو اپنے جو ساورن کنٹری ہے اس پر کوئی ایلیگیشن لگائے کہ اس نے 3000 صفحے کا جعلی ڈاکومنٹ چھاپ دیا تو وہ تو بہت بڑا الزام ہے. ڈاکٹر صاحب میں اس کی آپ کی تائید کرتا ہوں نا. اگر آپ پاکستانی تو ہم بھی پاکستانی ہیں. ہاں جی. تو میں آپ کی اس بات کی تائید کرتا ہوں. ٹھیک ہے جناب. اگر کسی اسمبلی کے اوپر یہ کہا جائے کہ یہ پرنٹ ہوئی ہے جعلی ہے تو میں آپ کی تائید کرتا ہوں. لیکن اس کو دھمکی نہ سمجھا جائے. یہ قانونی حق ہے نہیں اس اور میں تو اخلاقی. دھمکی کی بات ہی کوئی نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے جناب. ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کو دھمکی دینے کی. بہت شکریہ. گورنمنٹ کے آفیشیل ڈاکومنٹ کو فیک ڈاکومنٹ کہا جائے, گورنمنٹ کے ادارے کے اراکین کو چور کہا جائے. پاکستان میں ایف آئی آر ہوتی ہے. ہاں صحیح ہے. اور اگر کسی نے کہا ہے تو اس کو آن کرنا چاہیے. ہاں ہم نے تو کہا یہ بیان اپنے خلیفہ سے دلوا دو. ہاں ٹھیک. جمعے والے دن آج منگل ہو گیا ہے نا, تو میں نے کہا یہ بیان جو تم یہاں دے رہے ہو نا اپنی انفرادی حیثیت سے, یہ اپنے خلیفہ کو جمعے والے دن کہہ دے. یہی باتیں نہیں میرے خیال میں وہ شاید اس طرف نہ جائیں, چونکہ وہ تو کہتے تھے اگر یہ کارروائی پرنٹ ہو جائے. یہ میرے خیال میں ابھی کوئی بندہ کو وہ کہتے ہیں شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار والی بات ہے. ان کی طرف سے تو کوئی وہ تو اس اسمبلی کی کارروائی کو میرے خیال میں اون کرتے ہیں. ہاں وہ اون کرتی ہے, جماعت اون کرتی ہے. اور تو یہ اس بندہ کا یہ قابل نہیں ہے کہ اس کو کوئی اہمیت دی جائے. ہوسٹ صاحب نے صحیح کہا کہ اس کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے. لیکن میں ایک وضاحت کے طور پر میں نے گزارش کرنی تھی اس سے انشاءاللہ. صاحب میں احمد علی بول رہا ہوں, تو میں نے یہ صرف کیا کہ فائدہ کوئی نہیں ہے کہ ہمیں ان کی برات میں جا کے نوا مسئلہ بنانے کا اپنا سر کھپانا. نہیں کوئی ضرورت نہیں سر کھپانے کی. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ٹھیک اوکے جناب, اللہ حافظ. بہت شکریہ شاہ صاحب, آپ سے تو بات کر کے ہمیشہ ہی اچھا لگتا ہے. اللہ آپ کو جزا دے. اوکے السلام ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹا سا سوال میں بھی پوچھ سکتا ہوں آپ سے؟ جی پوچھیں. ڈاکٹر صاحب یہ خلیفہ مجبور نے لونڈا رکھا ہوا ہے سلیم, اس کی ساری باتیں لکھتا رہتا ہے. خلیفہ مجبور نے کس کو کیا کہا, حتیٰ کہ کو پھوسی بھی مارے, کتنے بجے ٹوائلٹ گئے, کتنے بجے پیشاب گئے, سب کچھ لکھتا ہے. مرزا طاہر نے بھی رکھے ہوئے تھے, وہ بشارت صاحب پرسنل سیکٹری, ان کے ہر چھوٹی موٹی چیز ڈائری کے اندر لکھتے تھے. میرا آپ سے سوال ہے ہولی اسپرٹ صاحب, یہ جو خلیفے کی چھوٹی 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 چیز نوٹ کر کے رکھتے ہیں, اندراج رکھتے ہیں, مرزا ناصر جب گیا تھا اسمبلی میں مرزا طاہر کو لے کے, ان کا کوئی پرسنل سیکٹری نہیں تھا جو لکھتا کہ بھئی کیا کہا جا رہا ہے, کیا کیا جا رہا ہے, اس کا کوئی اپنے پاس لکھتا؟ ہاں اس کا جواب موجود ہے جی اسمبلی کی کارروائی میں, صفحہ نمبر 1400 کچھ ہے, اس پر انہوں نے یہ بات اٹھائی گئی. تو قومی اسمبلی میں جب بات ہو رہی تھی نا, بلکہ میں آپ کو اسمبلی کی کارروائی نکال لوں تو میں آپ کو لفظ پڑھ کر سنا دیتا ہوں کہ ایک منٹ, خیر میں آپ کو متن بتاتا ہوں, میرے پاس وہ لفظ لکھے ہوئے ہیں. بات یہ شروع ہوئی کہ کیا جو تھے نا صحافی جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے, اور ان میں سے شاید بعض کو اجازت بھی نہیں تھی کہ وہ سن سکیں کارروائی کو. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم اخباروں میں پبلش کریں اس کارروائی کا جو سمری ہے. تو جو سپیکر, چیئرمین سپیکر ہی تھے اس وقت, اسمبلی کے سپیکر چیئر کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ ہم جب تک فیصلہ نہیں ہوتا ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے. اور اس بات کا فیصلہ کہ انہیں کافر قرار دیا جائے یا نہ دیا جائے, اوپن ووٹنگ جس کو کہتے ہیں نا, وپ کے بغیر, یہاں پر ہوتا ہے نا کہ پارٹی نان پارٹی ووٹ تھا, اس کے بغیر یہ فیصلہ ہوا تھا. تو مرزا ناصر سے ایک کنورسیشن ہے, وہ میں نکال سکتا ہوں, ابھی میرے سامنے میں نے کھول لیا کارروائی. اس میں کنورسیشن کا متن یہ تھا کہ مرزا ناصر سے انہوں نے پوچھا کہ آپ کا کیا رائے ہے کہ ہم اجازت دیں یا نہ دیں ان کو پبلش کرنے کی. دیکھیں اس قسم کا متن ہے اس کا. تو مرزا ناصر نے کیٹاگوریکلی کہا کہ میں آپ سے فلی ایگری کرتا ہوں کہ اس کی ایک بات کو بھی پبلش نہ کیا جائے, اور جو اس میں حصہ لے رہے ہیں لوگ وہ اس کا ریکارڈ نہ رکھیں. یہ مرزا ناصر کے لفظ ہیں. ڈاکٹر صاحب میرا آپ سوال نہیں سمجھے, میں پبلش والی بات نہیں کر رہا. دیکھیں نہیں فیصل بھائی, دیکھیں یہ بات بڑی ریلیونٹ ہے جو ڈاکٹر, ایک منٹ فیصل بھائی, یہ بڑی ریلیونٹ بات ہے یہ جو کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. ریلیونٹ اس طرح ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے 40 سال جھوٹ بولا کہ اگر یہ کاروائی پبلش ہو جائے تو
पूरा पाकिस्तान कादियानी हो जाए। और इसी झूठ के सारे इन्होंने ना कार्रवाई पर बहुत गलत कैपिटल गेन किया है। तो ये जो डॉक्टर साहब कर रहे हैं बात, ये तारीखी बात है और इस बात का इस कार्रवाई के साथ बहुत गहरा तल्लक है कि एक तरफ इन्होंने ये बोला असेंबली के अंदर कि कार्रवाई पब्लिश ना की जाए। मैंने रिसर्च करके कल ही मैंने कहीं से ये चीज़ ढूंढी है। ये दोबारा वाला दें जरा डॉक्टर साहब, क्या बात कही आपने? वो जब आखिरी दिन था ना कार्रवाई का, तो सहाफ़ी जो थे उन्होंने पूछा चेयरमैन से, स्पीकर से, जी हम इसकी समरी पब्लिश करना चाहते हैं अपने अखबारों में। तो चेयरमैन ने सवाल किया, चेयरमैन ने पहले उन्हें जवाब दे दिया कि जब तक हम फैसला ना असेंबली कर ले आप पब्लिश ना करें इसको, क्योंकि बायस आ जाएगी। तो उसके बाद उसने, चेयरमैन ने सवाल किया मिर्ज़ा नासिर से कि आप अपनी राय भी दे दें। तो मिर्ज़ा नासिर ने कहा कि मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, इस कार्रवाई को बिल्कुल पब्लिश नहीं होना चाहिए, बल्कि जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं सिवाय ऑफिशियल रिकॉर्ड के किसी को इसका रिकॉर्ड भी नहीं रखना चाहिए। बहुत अच्छा। और फिर सवाल किया स्पीकर ने कि क्या आप लोगों के पास रिकॉर्ड है? तो मिर्ज़ा ताहिर ने कुछ कहा मिर्ज़ा नासिर को, और मिर्ज़ा नासिर ने जवाब दिया, जी हम तो अपनी जो याददाश्तें हैं वो तो रखते हैं, लेकिन हम उसे पब्लिक नहीं करेंगे। जज़ाकल्लाह। अब आए हैं ना आप लाइन के ऊपर, मैं कह रहा हूँ ये जो मिर्जा नासिर ने अपनी यादाश्त, उधर नोट्स, मिनट्स, जो भी चीज लिखी हुई है, वो जमात वो ले आए ना। हाँ, कि भाई हमारे पास ये मौजूद है, हमारे बंदे ने ये कलम किया था, और ये चीज आपकी इस प्रिंटेड कार्रवाई के साथ मैच नहीं कर रही, वो क्यों नहीं लाती जमात सामने? और 5 आदमी थे जी, एक नहीं। मिर्ज़ा ताहिर, मिर्ज़ा नासिर, मौलवी दोस्त मोहम्मद, शायद एक से उसका नाम भूल गया, वो वकील था इनका, और वो लीगली क्वालिफाइड आदमी था, और एक और आदमी था। उस 5 के ग्रुप था। और जमात का 3 का पब्लिश था। की है उन्होंने, नहीं पब्लिश कराई होगी उस वक्त। खुद तो इनके पास मिनट्स मौजूद है ना, खुद तो डिटेल्स मौजूद है ना कि हमने ये जवाब दिया, ये पूछा गया, बंदे साथ गए हैं। ਉਹ ਚਲਿਓ ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਕਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਹੋ? 40 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ। ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਪੇ कहने ਸਾਨੂੰ मैं सफाई नहीं दे रहा राजा जुवेद भाई, मैं सफाई नहीं दे रहा। ये जो अभी इतराज किया गया है जमात कादियान की तरफ से कि हम इस कार्रवाई के ऊपर इसलिए बात नहीं करते कि ये कार्रवाई ऑल्टर्ड है, मैनिपुलेटेड है, जो 40 साल edited है। अपनी कौम से झूठ बोल सकते हैं। तो मेरा इनसे हमेशा ये सवाल रहा है, मेरा हमेशा इनसे ये सवाल रहा है कि आपके खलीफा पद मारे ना पद, तो वो उसको याददाश्त नोट करते हैं कि खलीफा इतने बजे पेशाब करने गया था, इतने बजे वापस आ गया था, इतने बजे उसने पद मारा था। फैसल साहब 20 दिन वहां पे खलीफा जलील होता रहा है, उसकी कोई एक सफा भी नहीं किसी ने लिखा। यार इनका कोई वकील इतना काम कर दे, पिटीशन दायर कर दे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में, सिर्फ पिटीशन दायर करे, फैसला बेशक उसके बाद वो ले ले वापस। ये काम करने को लिए नहीं तैयार होंगे, इसलिए कि ये झूठ है सारा। इनका कोई वकील इनको उड़ा कर रख देगा, उसका लाइसेंस जाता रहेगा। बिल्कुल यार बिल्कुल। कैसी बातें करते हैं आप, जैसे आप कुछ बात, कोई बात समझते ही नहीं है। इनका वो ये बहानाबाजी है टोटल, और कुछ भी नहीं इसमें। कोई मुल्क ऐसी कोई गैर जिम्मेदार असेंबली है? यार आप लोगों ने सारे पैनल पे अपने मुसलमान बिठाए हुए हैं, ये मैं ट्रुथ सीकर को उठाता हूँ, मैं खाली करता हूँ सीट, उससे जवाब लें, उनको भी नुमाइंदगी का हक दें। बिल्कुल होना अपनी चाहिए तरफ से जी, ना करते गए उनको सारे। लाएं ऊपर ये लाएं, आएंगे बल्कि नहीं, ये आएंगे नहीं, झूठे हैं। नहीं इनवाइट करके देखें। आप क्यों चले गए फैसल भाई? आप आज वो सीट खाली की है। हाँ। तो राजा साहब बात ये है कि ये जो इतना बड़ा इल्जाम लगाते हैं, तो ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे क्यों नहीं गए यार? जाना चाहिए कि नहीं आईसीजे में? डॉक्टर साहब ये बात सुनो, ये तुम लोग नहीं, म्यूट ना करें जी, बोलने दें। ये डॉक्टर साहब गुस्ताखी करेगा, बाद में जिम्मेदार कौन होगा? मतलब अगर राजा साहब से पूछ ले, मेरे ख्याल में तो नहीं, इसको नहीं, कोई जरूरत नहीं है, बैठा रहे नीचे यार,
इसको ज़िया भाई को ऊपर बुला के पूछें, ज़िया भाई मैंने लड़ाई ट्रूथ करने लागू सीकर का कहा था, मैंने ट्रूथ सीकर का कहा था, उसको बात तो कर सकता है ना यार। ये तो नहीं, गालियां ट्रूथ देने सीकर वाला ठीक है। गंदा आदमी है। ट्रूथ मदारी इसका नाम सही गंदा रखा बंदा हुआ है, उन्होंने। इसको ना ले, इसको ना ले, ये बहुत इंतहाई गंदा इंसान है ये। पूछना है अपने वो अजीम भट्ट साहब बैठे हुए हैं, अजीम भट्ट साहब से पूछ सकते हैं। हाँ वो जी, बड़े वो आ आदमी जाएं, आ हैं। जाएं, उन्होंने ट्रूथ सीकर है, नजीर ए साहब हैं, हाँ जी। नासिर साहब हैं, इस तरह के लोगों से पूछें। ये इस बदतमीज आदमी से क्या पूछना है? भट्ट इसके साहब तो ने मुंह आज में बवासीर है। तो भट्ट साहब ने आज मुनाजरा तकरीबन बस कार ही सड़िया सी हाँ बिल्कुल अद्धा तक कर गए ने बस ਐਵੇਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸ ਕੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਹੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਤੈਅ ਭਾਈ ਜੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਨਾ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਕੇ, ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੈਅ ਕਰਕੇ, ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਰ ਸਾਬਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਕਾਰ ਸਾਬਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਲਖਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ नहीं, मैं तैयार हूँ, लेकिन फैसला वैलिडिटी ऑफ डॉक्यूमेंट का तो आमिर साहब से कर ले, क्योंकि मैं वैलिडिटी ऑफ डॉक्यूमेंट का फैसला तो फिर हुकूमत पाकिस्तान से लेने लूंगा। आप मुझे अपना बयान दे दें कि आपकी जमात का मौक़िफ़ है, मैं आपको उसमें कॉपी करूंगा ईमेल में, जो मैं असेंबली के स्पीकर को भेजूंगा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को भेजूंगा कि ये जी पाकिस्तान ने इस जमात का मौक़िफ़ है कि उसको धोखा और गलत डॉक्यूमेंट शाया किया है, तो पाकिस्तान की हुकूमत आप यकीन करें कि इस पर एक्शन लेगी, इसका जवाब आएगा। सर ये इनकी जमात ये काम करेगी नहीं। जमात के अंदर जमात वालों को पता है कि हम झूठ से काम ले रहे हैं 40-50 साल से। जी हाँ, क्या अगर समझते इनमें हैं कि क्या कोई कादियानी वकील नहीं है पाकिस्तान में और उसने ये फैसला देखा, ये कार्रवाई देखी नहीं हुई है? नहीं जी राजा कब के साहब, चले जाते काजी आईसीजे का चीफ प्रोसिक्यूटर करीम खान कादियानी है। बिल्कुल बिल्कुल, वो डॉक्टर खान का बेटा है ना। हाँ, हमीद खान जो स्किन स्पेशलिस्ट थे उसके वालिद, और उसका छोटा भाई वो जो लौंडेबाजी के जुर्म में मेंबर था ना, इमरान खान हमारी हाउस ऑफ कॉमन का एमपी था, मेंबर पार्लियामेंट था यूके का, उसको लौंडेबाजी के इल्जाम में जेल भी हुई और वो निकाल भी दिया गया। बिल्कुल मतलब कितना कमाल की फैमिली है, अखलाक तो आसमान पर पहुंचा हुआ है। वैसे डॉक्टर खान खुद शरीफ आदमी था। नहीं, डॉक्टर खान मैंने सुना है, कभी मिलना तो नहीं हुआ। मैं तो बहुत बड़ी मुलाकातें हुई हैं मेरी उसके साथ। अच्छा हाँ, वो सुना है फ्रंटियर के पेशावर के रहने तो वाले बंद कर दे यार, कमेंट बंद कर दे कमेंट प्लीज। नहीं रहने दो कमेंट, कोई मसला नहीं, भौंकने दो इस बम्बास्टिक को। उनकी वाइफ इंग्लिश है मैंने सुना है, उनके बच्चों के चेहरे से भी लगता अंग्रेज है। है और मेरा ख्याल है वो नर्स थी उधर अस्पताल में, और उसी हाँ, उसकी माँ भी नर्स थी, उनकी बीवी, उनकी सास भी नर्स थी उसी हॉस्पिटल में, लिवरपूल के पास है वो, कहीं मुझे जगह भूल गई। हाँ उनका घर नहीं, नॉर्थ जहाँ वो काम करते थे, अप नॉर्थ है वो, हडर्सफील्ड। और वो रहते तो इधर थे ना, इधर यॉर्कशायर में, उधर करीब हडर्सफील्ड। हाँ, हडर्सफील्ड में काम करते थे और वो वहीं पर शायद उस, खैर जो भी है, कादियानियों को तो खुश होना चाहिए कि आईसीजी में जाने का सुनहरी मौका है। जनाब कादियानियों, आपका खास बंदा करीम खान चीफ प्रोसिक्यूटर है भी, बैरिस्टर वो, और वो दामाद था मिर्जा ताहिर का मेरे ख्याल में। बिल्कुल, उसने उसको डाइवोर्स कर दिया हुआ है मिर्जा ताहिर की तलाक भी दे बेटी को। दी है। हाँ, एक और लड़की से शादी कर ली हुई है। अच्छा, मैं एक बात करना चाहता हूँ, जरा 1-1.5 मिनट माइक मुझे दे। मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो पोस्टर लगाया ना मजबूरी से, ये इसलिए लगाया है कि भट्ट साहब ने सारी शर्तें तय करके, मुनाजरे की टाइम तय करके, कल 7 बजे का टाइम रख के दावा पेश करके, उसके बाद भट्ट साहब ने खुरी लगा दी यहाँ से, और उनके पास बात करने के लिए पता चला कि कुछ भी नहीं है सिवाय इसके ये जो वीडियो क्लिप्स नहीं यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, भाई डॉक्टर मुबशर ने, वजीर कानून ने ये कहा था, फलाने ने ये कहा था, ये तो कार्रवाई जाली हुई है, ये तो कार्रवाई कोई नहीं। अच्छा भाई, मैंने कहा यार कार्रवाई उधर ही है, या तो ना कार्रवाई मौजूद नहीं है, या आप अपने खलीफा से कहलवाओ भाई ये कार्रवाई फेक डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट की तरफ से जो छपा है।
अगर कार्रवाई को आप ऑन करते हैं कि ये कार्रवाई दुरुस्त है, तो उस कार्रवाई पे बात करनी है कि क्लिप पे बात करनी है? वीडियो क्लिप में जो आपने काट के रखा हुआ, डॉक्टर मुबशर ने क्या कहा तो फलाने ने क्या कहा, बात तो कार्रवाई पे करनी है ना। आज वो कार्रवाई पे सवाल जवाब दोबारा कर लेते हैं। तो भट्ट साहब ने सारा कुछ तय करके उन्होंने कहा नहीं, मैं वो क्लिप पेश करूंगा, वो वीडियो क्लिप पेश करूंगा जिससे साबित होगा कि भाई ये चोर थे सारे, इन्होंने चोरों वाला काम किया, चोर चोर चोर। मैंने कहा भाई इस तरह ना करें। अगर किसी के बयान से, हमारे किसी बंदे के बयान से आप इस तरह की बात साबित करेंगे तो जो आपके बंदों के बयानात हैं वो मैं पेश करूंगा, फिर वो आप साबित हो जाएंगे। तो क्या फायदा इस तरह के बयानात साबित करने? जो आपका 2 नंबर खलीफा जीडी खोसर डिस्ट्रिक्ट सेशन जज गुरदासपुर के आगे बयान दे के आया है, वो मैं पेश करूंगा, फिर मानना कि हम यही हैं। वो कह के आया मेरे वालिद रंगीन मिजाज है, मान लोगे? तो इस तरह ना करो। आप असेंबली की कार्रवाई पर बात करें और कहें कि ये असेंबली की कार्रवाई, इसमें ये ज्यादती हुई है, हमारे साथ ये धक्का हुआ है, बात तो कार्रवाई पे करनी है। तो बहरहाल भट्ट साहब नीचे मौजूद हैं, अगर तो अली उनको कॉल डालो, अगर नहीं तो ये पोस्टर कॉपी करके ना, तो जो मियाँ साहब की ब्राड या जो भी वो शाह साहब कह रहे थे उन तक पहुँचाएँ कि भट्ट साहब आज फिर अपनी जमात का और अपने गिरोह का नाक कटवाने में कामयाब हो गए हैं। तो ये राय साहब तुम चुकना तो चुक लो राय साहब उन्होंने नाक कटवाएं जमात का, क्योंकि भट्ट साहब बात करके भागे हैं। ये सारे बंदे यहाँ पर गवाह थे, 40-45, सब के सामने भट्ट साहब ने शर्तें तय करके जब देखा कि अब बात तो शुरू होनी है, नहीं मैं रिकॉर्डिंग सुना दा मियां नूं ऐसी केड़ी गल। हाँ, पेश करने के लिए तो सिर्फ वीडियो क्लिप है, तो भट्ट साहब ने खुरी लगा दी है। ये इनका हाल है। मैं इनको पूछ रहा था पहले कि भाई ये सब वो, अगर किसी बंदे ने अखबार में ये खबर छाप दी कि 72 फिरकों ने मिलकर एक फिरके को काफिर करार दे दिया, आपने, आपकी बुनियाद वो अखबार की खबर है या ज़मीनी हकायक है? ज़मीनी हकायक क्या बताते हैं? क्या वहां पर वाकई 72 फिरके थे जिन्होंने एक फिरके को काफिर करार दिया, या एक को काफिर करार दिया, या 2 को काफिर करार दिया? क्यों अपने साथ झूठ बोलते हो, अपनी नस्लों के साथ झूठ बोलते हो? तो ऐसी कौम है कि इनको मतलब कोई गिरी पड़ी बात मिल जाए, किसी का वीडियो क्लिप मिल जाए, किसी अखबार का टोटा मिल जाए, उसको बुनियाद बना के उसी पर कहते हैं हम तो सिर्फ इस पे बात करेंगे। असेंबली की कार्रवाई के ऊपर बात करने के लिए भट्ट साहब तैयार हो के फिर खुरी लगा, क्योंकि पढ़ी नहीं है असेंबली की कार्रवाई, जानते नहीं है असेंबली की कार्रवाई के बारे में। मैंने कहा है कि कुछ असेंबली भाई ये जिन जो इनका बंदा तैयार हुआ है ना बात करने को, बाद में इनको कोई फोन आ जाता है, किसी से ये बात करते हैं, क्या होता है, बस दुड़की लगा जाते हैं। ऐसे मुझे आज भी लगा है, शक पड़ा है मुझे कि भट्ट साहब को अचानक जो यू टर्न लेना पड़ा है, किसी ने पीछे से कोई सुआ मारा है कि कितना गल करना की गल करना है वो कल कर। बिल्कुल। और ये बात डॉक्टर जकरिया ने भी की है, राजा तालमनान ने भी की है। वो इनका 30 सेकंड एक होता था, पता नहीं वो अभी अब कभी नहीं नजर आया, उसने भी की है, और आज इसने भी वही बात की है। आज ये 4-5वीं बार है ये भाग रहे हैं इस कार्रवाई से। हाँ जी, हाँ जी। अब तो मैं तो राजा साहब आपके साथ गया भी था उस दिन सैनिक वही, ब्राड पर। बिल्कुल मैं और आप गए थे। हाँ, मैं तो कोई इनकार नहीं किया। हम तो कहते हैं कि, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि ये रेफरेंस जो है ठीक नहीं है, तो हम ये रेफरेंस आपको निकाल कर हम देंगे आपको रेफरेंस जो। अच्छा डॉक्टर साहब एक मिनट आप सारे ठहर जाएं, राजा साहब आप भी। हाँ जी जमील साहब, असेंबली की कार्रवाई पर भट्ट साहब ने यार मेरे साथ दावा शवा अपना पेश करके टाइम तय करके कल 7 बजे का असेंबली की कार्रवाई पर बात करने से वो भाग गए भट्ट साहब। अच्छा, तो अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? ये बुरा हुआ है इसलिए कि लोग ख्वाहिशमंद थे, जानना चाहते थे असेंबली के अंदर क्या हुआ था, क्या गुफ्तगू हुई थी, कौन झूठा था कौन सच था। तो हज़रत मसीह मौद की नबूवत का फैसला अभी असेंबली की कार्रवाई की प्रोसीडिंग पे होगा? नहीं, हम तो असेंबली की कार्रवाई पर बात कर रहे थे, नबूवत का तो यहाँ पे सवाल ही नहीं आया। नहीं, असेंबली की कार्रवाई से आप निकालना क्या चाहते हैं? असेंबली की कार्रवाई से वो जो रोज सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर गुफ्तगू होती है ना बराडों पे, उसका 90% हिस्सा गुफ्तगू का इस मौजू पर होता है कि हमें क्यों निकाला, हमें क्यों निकाला,
हमें काफिर क्यों करार दिया, ये होता है। तो मैंने कहा इस पे बात कर लेते हैं, अभी असेंबली में क्या कहा और क्यों निकाला। नहीं, बात ये है कि वो तो हम इसलिए कहते हैं कि असम्बलियों का ये काम ही नहीं है, ये तो बंदे और खुदा का मामला है। हाँ, किसी भी दुनिया में आज तक कभी हुआ है कि असम्बलियां जो हैं वो किसी के कुफर और इस्लाम का फैसला करेंगे? तो नहीं होता। किसी भी सिविल नहीं, वो आपके मुताबिक होता है ना, किधर होता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने लोगों को काफिर करार दिया था अपनी जिंदगी में? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सेनेट और कौमी असेंबली के इजलास नहीं होते थे। मैं ये अर्ज करने लगा हूँ कि जो चले खुलफाए राशिदीन में तो होती थी ना। ऐसे न करें ना, बारी बारी बात करें। आपकी बात मैंने सुनी है, मुझे बात तो करने देना जवाब। सुन ले, मैं भी जवाब है। सिर्फ यजीद ने नवासा रसूल को काफिर करार दिया था। हाँ, अपनी उधर भी कोई सेनेट और कौमी असेंबली का इजलास नहीं हुआ था। सेनेट और कौमी असेंबली तो एक मॉडर्न सेटअप है ना भाई साहब। बात तो सुने ना, कादियान में भी इस तरह, तो मैं भी कहूंगा कि कादियान में भी कई कौमी असेंबली और सेनेट के इजलास होते थे। मिस्त्रियों के घरों को आग लगा दो, फलाने के सर पे कुहाड़ा मारो, फलाने मुल्तानी को खंजर मारो, वहां भी असेंबली के इजलास चलते थे। इस तरह की बातें करने का क्या फायदा है? क्या कह लें, लेकिन हम प्रूव करेंगे कि गलत कह रहे हैं आप। मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये सवाल असेंबली की कार्रवाई में पहला सवाल है कि क्या किसी इदारे को, किसी अथॉरिटी को हक है कि वो किसी के अकीदे का फैसला कर सके या किसी की आइडेंटिटी को बयान कर सके? ये सवाल, पहला सवाल है। इस पे बात करना चाहते थे हम। लोगों के पास 3000 सफा पढ़ने का टाइम नहीं, लोग ये गुफ्तगू सुन के उनके इल्म में इजाफा हो जाना था। लेकिन तो फिर किसने जवाब दिया? उसका क्या था? भट्ट साहब जवाब देंगे ना। नहीं, भट्ट साहब को मारें गोली, वो कौन है? एक आम सा मेरी तरह बंदा है। मैं अभी क्या दूं, मैं भाग जाऊं तो मैं को रिप्रेजेंटेटिव? हम तो गोली नहीं मारते, हम तो शरीफ शहरी हैं जी जमील साहब। नहीं, ओ नहीं, मरासियों वाली बात ना करो। मैं एक जनरल टर्मिनोलॉजी में ऐसे जस्ट प्रोवर्ब यूज कर रहा हूँ। नहीं, इधर भट्ट साहब मौजूद है, बुलाएं उनको, पूछे भी क्यों आप भागे बात से। नहीं, मैं एक पूछने की जरूरत है डॉक्टर साहब की अपनी मर्जी, वो मेरी तरह आजाद है। हम में से कोई भी जमात अहमदिया का कोई ऑफिशियल मेंबर नहीं है। हमारी एक जमात है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी ऑफिशियल एक से है। मैं जो मर्जी कहता रहा हूँ, कोई और जो मैं, जब तक खलीफा वक्त के मुंह से बात ना निकले उसको ऑफिशिएट आप नहीं कर सकते। आपकी जो जमात का ऑफिशियल मौक़िफ़ है वो क्या है असेंबली की कार्रवाई पर? इट वाज ए टोटल नॉनसेंस। खुदा और रसूल की दुश्मनी। नहीं, जो कार्रवाई छपी है ये ओरिजिनल है या फेक है? Oh, I have no idea. I never asked that question to anybody. And मेरे ख्याल में फेक है। मेरे ख्याल में फेक है। नो, आप पूछे तो सही, पूछने में क्या हर्ज है? I have asked जो के लोग इधर हैं, it is incomplete. अगर फेक नहीं है तो एटलीस्ट इनकम्प्लीट है। हाँ, इनकम्प्लीट। सबसे बड़ी बात है कि ये आपका क्या है, ये डॉक्टर शैक्टर जो बना फिरता है होली। ऐसे ना करें, ऐसे मेरे साथ बात करें, किसी को मुखातब ना करें, फिर वो भी जवाब। He was saying, नहीं जवाब दे दे, not a problem. He can address me same way. I have no respect for him because आप मेरे साथ बात करें, आपके लिए उनके दिल में रिस्पेक्ट नहीं। सुन ले। अभी उन्होंने कहा जी कि मिर्जा नासिर अहमद ने कहा जी कि इस कार्रवाई को ना छापे। तो यार तुसी एडे चंगे सो के तुमने मिर्जा नासिर अहमद को काफिर करार देने के बाद वैसे ये कहा आपके मिर्जा नासिर साहब ने? ओ गलत सुन ले यार, तते तवे ते ना बह जाकर आप। नहीं, ये बात ठीक है, ये गलत है। ओ भाई राम नाल मैनू की पता हुए, मैं असेंबली में बैठा हुआ था। नहीं डॉक्टर साहब, असेंबली में ये कार्रवाई में बात लिखी हुई है, पढ़ी आपने कार्रवाई? क्या मैंने तो सिर्फ तुम्हारा ये जो डॉक्टर बना फिरता है इसके मुंह से सुना। कार्रवाई आपने पढ़ी है? No, I haven't. I have just listened from different people. अगर ये साबित कर दिया जाए कि आपके खलीफा साहब ने ये कहा था कि ये कार्रवाई ना छापी जाए, उसके बाद फिर अगर आपके खलीफा साहब लोगों को ये कहते रहे हैं कि हुकूमत ने क्यों नहीं छापी, छाप देती तो लोग मिर्जाई हो जाते, फिर? हाँ, ये सच बात है, ये कहा है। तो बात ये है कि जब मेरे खलीफा ने ये कहा कि छाप देते तो वो तो उस वक्त पाकिस्तान में थे ना, और हमने तो 40 साल से ये कहते रहे हैं। तो आपने अगले 6 महीनों में छाप देनी थी। हेलो मिर्जा साहब, छाप दी जे करो अहमदी साहब नु। तुसी कादली 40 साल का इंतजार। उसकी तो वजह है ना कि कानून एक ऑर्डिनेंस पास हो जाता है। तो आपका कानून है मेरे भाई, कौन सा ऑर्डिनेंस है यार? अभी और सुनो तो सही, अभी मेरी भी बात सुनो, मुझे भी मौका देना। कानून और ऑर्डिनेंस का तो आपके घर की लौंडी है, जब मर्जी तब्दील कर दो। वो तो आप एक दूसरे का क्या हाल कर रहे हैं? पाकिस्तान में 2 घंटे में कानून बन जाता है, 2 घंटे में शरीयत की जरूरत होती है, ऐसे ना करें। कोई नहीं ना। अभी इमरान खान को जब उन्होंने हटाना था तो रात को 2 बजे से खोल दीजिए अदालतें, और कोई किसी का सुनने वाला नहीं है।
ये वो कादियानी तो नहीं ना, वो तो आपका पक्का मुसलमान है ना, हमारा तो मुखालिफ है ना। अच्छा बात को दूसरी तरफ ना ले जाए, मैं ये कह रहा हूँ दूसरी कि तरफ नहीं है, कानून पाकिस्तान में कोई नहीं है, वो अगर- आप लौंडी है। मेरी सुनो तो सुनो। जुल्फकार अली को कानूनी तौर पे फांसी दिया गया था, कौन मान अच्छा अब रहा है आपकी आजकल? बात सुन ली, अब जरा मुझे भी मौका दे। मैं ये कह रहा हूँ जमील साहब कि अगर कानून एक बना दिया कि 30 साल के लिए या 40 साल के लिए 35 साल के लिए ये कार्रवाई पब्लिश नहीं की जाएगी, और ये कानून बनाया है दोनों फ्रीकैन की रजामंदी के साथ, दोनों ने वहां पर कहा है कि इस कार्रवाई को सील कर दें, इसको 30-35 साल के लिए बंद कर दें, किसी के सामने पेश ना कर। अगर ये दोनों की रजामंदी से वहां पर फैसला होता है, एक फरीक वहां बाहर आके लोगों को ये कहता है कि ये क्यों नहीं छाप रहे, अगर छाप देते तो आज तक ये हो जाता वो हो जाता, क्या वो धोखा नहीं दे रहा लोगों को? बस ये सवाल है। नहीं तो सबसे बड़ा धोखा तो आपकी हुकूमत ने किया, वो गुंगी और बहरी और अंधी थी, उसका कोई ऑफिशियल मेंबर खड़ा हो जाता या बख्तियार कहता कि झूठ बोल रहे हैं जी, हमने इनकी रजामंदी से किया, इट वाज ए टू वे ट्रैफिक। कहीं पे ऐसा बयान आया कि जब मेरे खलीफा ने कहा तो आप लोग गुंगे बहरे थे, जुल्फकार अली भुट्टो उठ जाता, आपका वजीर कानून उठता, या बख्तियार कहता कि इट इज अ टोटल नॉनसेंस, ही इज लाइंग, व्हाटएवर वी हैव एस्टैब्लिश्ड ठीक है। इट इज विद द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज। हाँ ठीक हो गया। अच्छा बात यह है जमील साहब कि आपके खलीफा साहब आए 84 में यहाँ पर बाहर यूके में, 84 से लेकर 99 तक मेरा ख्याल है उन खुतबों में और उन तकरीरों में से कोई एक बात है जो इन्होंने कही है, शायद 2-3 दफा कही है। ये बात जब तक कन्वे नहीं होती, उनको क्या पता कि आपके खलीफा साहब क्या फरमा रहे हैं यूके में बैठ के अपने लोगों को धोखा देने। ये तो आप बातें बाहर आई हैं ना सुने सुने सोशल सुने मीडिया की वजह से। अच्छा, आप ये मुझे कहना चाहते हैं कि 74 का जो बयानिया था कि अगर ये कार्रवाई छाप दें तो आधा पाकिस्तान अहमदी हो जाएगा, ये आपको 74 से लेके 84 तक नहीं पता चला? नहीं, आपके 84 खलीफा ने 84 तक पाकिस्तान रहते हुए ये बात कही नहीं है। अच्छा यार, मैं छोटा सा बच्चा था तो मुझे तो पाकिस्तान में रहते हुए पता था, आपने ये बात 84 के बाद पता चला और मैं पाकिस्तान में रहता रहा, और हमारी आपने- पूरी RMD के मुंह पे ये बात थी। जमील साहब आपने ठीक ये है। बात अपने खलीफा के मुंह से पाकिस्तान से में बैठे हुए सुनी है? एग्जैक्टली, ऑफ कोर्स सुनिए, 84 से पहले आपके खलीफा ने ये बात पाकिस्तान में कही थी। 2000%, as soon as this decision was taken, I was a kid in Pakistan and I knew about it. और ये हमारे बैठे हर मीटिंग में, हर मस्जिद में आम बात होती थी। नहीं मीटिंग में, आप और क्यों- मीटिंग को छोड़ दें, आप नहीं, मैं खलीफा ने मीटिंग की बात कर रहा हूँ, मैं मीटिंग मेरी की क्या मेरी बाज बात- हो गई है मस्जिद में, और उसके मेरी- बाद कोई छोटी सी एवं डिस्कशन 2-4 बंदे कर रहे हैं, तो बुजुर्गों के मुंह से सुनी ही ऐसी बातें कि छापते क्यों नहीं है? जमील साहब मेरी बात तो सुने ना, 74 से तो 82 तक आपके वो तीसरे खलीफा ही मौजूद थे ना। ये जो आपके चौथे खलीफा हैं ये तो बने 82 में। ये Yeah. बात इन्होंने कही है कि आपके तीसरे खलीफा ने कही है? उन्होंने भी कही थी, दोनों ने कही है। हाँ, सारे बुजुर्ग जो दोस्त में मशाइख साहब मौजूद थे उन्होंने भी कही है। ये बात किसने कही है? ओ मेरे भाई, ये सब ने कही है जो कि मौजूद थी असेंबली में। दिस वाज बिकॉज दे वर द पीपल ये एंड सारे वहां पर वादा करके आए थे और खुद ख्वाहिश का इजहार करके आए थे कि कार्रवाई ना छापना, और सब ने कहा कि लोगों को ये बातें कही हैं। देखें जी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये पहली दफा हम जमात अहमदिया का मेंबर होने की बिना पर मैं बता रहा हूँ आपको, विदाउट एनी ओवर एक्सजेरेशन, क्योंकि आप लोग तो झूठे हो ना, हमें झूठ बोलते रहते हो। तो नहीं, इसमें हंसने वाली बात, दिस इज द ट्रू। आप लोग किसी भी एक्सटेंट पे जा सकते हैं झूठ बोलने में। आप गलत कलमा पढ़ रहे हैं और आप सच बोल रहे हैं फिर हैं जी। मैं गलत कलमा पढ़ रहा हूँ, तुम्हें क्या पता हो? मेरे जी कलमे का जी तो सुने सुन ना, गलत अभी सुनता आपने है। पढ़ा है। तुम्हें क्या पता हो मेरे कलमा गलत है कि ठीक है, वो तो मेरा कलमा है। जमील साहब अभी पढ़ा है ना, वो कहते हो मुसलमानों वाला हम भी इस्तेमाल करते हैं, वो ही गलत पढ़ा है, उसी की नौसत पड़ी हुई है। चलो ठीक है, तो खुश रहो यार। मैं तो ये कहता तुम नौसत पड़ी तो तुम क्यों पिट रहे हो अपनी छातियां? कहो कि भी इनके ऊपर नौसत पड़ी हुई है, हम जीत गए, हम खुश हैं, हमारा कलमा सच्चा है, हमारा नबी सच्चा है, हमारा रसूल सच्चा है, हमारा इस्लाम पूरी दुनिया पे फैल रहा है, गलबा हो रहा है, ये तबाह हो गया, खत्म हो गया। 1800 तो टोटल बंदे हैं वो तो अल्लाह हमारे। ताला वो तो अल्लाह ताला ने वादा किया हुआ ना, हो वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल पूरा हो गया वादा तो यार,
मौज करो। लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ले। अल्लाह ने देखना- इस रसूल को मबूस इसलिए किया है कि तमाम अदियान बातला पर इस दीन हक को गालिब करे। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रसूल जो था वो गालिब है और गालिब नहीं, रहेगा। आपके रसूल, आपके जो कादियान के रसूल हैं वो तो मगलूब है ना, आपके सामने ही है सूरत हाल, इसमें तो कोई गुस्से वाली बात नहीं है, जो फैक्ट है वो तो मैं मुझे गुस्से वाली बात नहीं है, लेकिन आपके ये जो जोर लगा के कहना होता है ना, इसको मैं इंजॉय करता हूँ, हाईलाइट करते हैं। कौन आप सिर्फ अपने आप को मुसलमान एक तरीके से साबित करते हैं कुछ काफिर करार दे के। आप सिर्फ अपने आप को रसूल अल्लाह के साथ उस वक्त मुंसलिक करते हैं मेरा उस पाक रसूल से जो कि रहमतुल्लिल आलमीन है उसके साथ रिश्ता तोड़ के, और ये सबसे बड़ी गुस्ताही है। खुदा कहता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह रहमतुल्लिल आलमीन है, तमाम जहानों के लिए रहमत। आप कहते हैं नहीं हमारा पेटेंट है, ये सिर्फ हमारा रसूल है। अमर नजीर भाई थोड़ी जी इजाजत जी। पहले तुम हुन लड़ के पैना अमर ना मेरे नाल ते जमील साहब दी लड़ाई नहीं, तुसा मिनट च लड़ पैना, मैनूं इन्ना पता है। नजीर नहीं साहब ਉਹ ਹੁਣ ਫਾਰਗ ਹੈ ਨਾ ਵੈਸੇ ਹੀ मैं ਉਹ सर ਤਾਂ ਮੁਖੀਆ ਹੈ ਨਾ। गलबात ते तुसी फिर गुस्सा कर जांदे हो सारे वाल दोए वाली, तो चलो कर लो गल, मैं चुप कर दूं। ਨਾ ਨਾ ਨਜ਼ੀਰ ਕੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੋਖੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਕਰੋ। नहीं नहीं इस तरह दी कोई ਐਕਸਪਰਟ गल ਹੈ। नहीं, मैं ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕਾਇਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਬਦਲਿਆ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰੋੜਿਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੀਨ ਗਾਲਿਬ ਹੈ, ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਮਗਲੂਬ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕਾਇਕ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। देखे ना जी, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपको हमारे बच्चों का बहुत ज्यादा ख्याल है। तो हमारे बच्चे जो है ना वो बड़े पढ़े लिखे और इंटेलिजेंट हैं, और वो खुद ही इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं कि कौन गालिब है और कौन मगलूब है, हमें बताने की जरूरत ही नहीं है। वो पाकिस्तान में शाहदौले शाह के चूहे तो हैं नहीं, ठीक है, वो पूरी दुनिया में फिरते हैं, उनको 10-10 तो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस आती हैं और सारी लैंग्वेजेस में कुरान भी उनको आते हैं। दे आर वेरी हाईली एजुकेटेड एंड वेरी इंटेलिजेंट पीपल, हमें उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। सो दे नो व्हाट इज द ग्राउंड रियलिटी एंड व्हाट इट इज नॉट। हमें नहीं उनको बताना पड़ता, वो कोई मदरसे में तो नहीं पढ़े, वैसे जमील चक साहब, 300 गाफवे में। जमील लेकिन साहब, वो- जी फरमाइए। जो बच्चे आपके 10-10 जुबानें जानते हैं, कुरान को 10-10 जुबानों में वो बोलना पढ़ना लिखना सीखना जानते हैं, वो बच्चे हैं कहाँ पर? ये जो टिकटॉक पर हशर हो रहा है, वो क्यों नहीं इनकी जान आके छुड़ाते इन बेचारों की? हमें तो आज तक वो बच्चे मिले नहीं। वो कहाँ पर हैं बच्चे, कहाँ रहते, किस शहर में हैं? उनका वो स्टैंडर्ड और स्टेटस नहीं है, दे डोंट कम। हमारा को भी कोई मुरब्बी आया है इधर? नो दे डोंट। आजम सैफी क्या है? आजम सैफी क्या है? आजम सैफी क्या है? अंसर रजा क्या है? कल रात अंसर रजा का टाइम तय करके डॉक्टर जिक्रिया साहब ने वहां से भी कुरी लगा ली है। तो क्या अंसर रजा के साथ कोई बात कर सकता है? अंसर रजा तो पाकिस्तान का बोर्न है और न्यू एमडी है, न्यू मोबाइल। अंसर रजा की मैं ऑडियो अगर कहीं तो मैं अभी प्ले करके सुना देता हूँ। सुन ले और जनाब मोहतरम सुन, अंसर रजा को बच्चा है, मैं आजकल के बच्चों की बात कर रहा हूँ जो बाहर पैदा हुए हैं और रेज हुए हैं, और जो पीछे आपके वो जा रहे हैं उन्होंने दी अकल ही कोई नहीं ना, उनका आईक्यू लेवल कहाँ रहते हैं वो बच्चे? उनको सामने लाए मैदान में। व्हाई वुड दे कम? तुम्हारे साथ बात करें इसलिए कि ये आपके जो आपके मुरब्बी, मेरी बात सुने ना। आमिर नजीर मेरी बात सुनो, आप लोग तो मेरे जैसे आम बंदे से डर जाते हो, घबराते हो, बात नहीं करते। नहीं, मैं तो देखो आपको खुद दावत दे के आपके साथ बात कर रहा हूँ जमील साहब। अभी क्या गुस्सा नहीं, मैं तो मना कर रहा हूँ कि कोई बंदा और बात ना करे, खामखा लड़े नहीं। जमील साहब, अच्छा ये देखिए क्या लिखा हुआ है, मेरी सुने सही ना, ये पोस्टर क्या लिखा हुआ है? पोस्टर पे पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है? और जो भी लिखा ठीक है। 30 सेकंड्स। हमारी अगली नस्ल को ना कोई जरूरत नहीं है हमारी गाइडेंस की, ठीक है? मिर्जा साहब की किताबें पढ़वा दो, मेहरबानी करो, आपकी गाइडेंस नहीं चाहिए होगी इंशाल्लाह उनको। तो बच्चे मिर्जा साहब की किताबें कुछ छुपी हैं, जहां से तुम लेते हो वो भी ले लेते 15 हैं। साल का बच्चा आया था, वो तो जानता ही नहीं मिर्जा साहब कौन है, उसको तो पता ही नहीं पता। कल राती 18 साल का बच्चा आया, उन्होंने मिर्जा साहब के दावे का नहीं पता मेरा नबूवत का दावा। मैं तुम्हारी आधी कौम से ले आता हूँ 40 साल के, उनको कलमा नहीं पढ़ना आता। तुम्हारे पार्लियामेंट में बैठे उनको कुल हो वल्ला नहीं मतलब आती। जिस तरह के हमारे जाहिल हैं इसी तरह के आपके जाहिल हैं। नहीं, तुम बहुत बड़े जाहिल हो। तो तुम्हारा इट पुट्टो जाहिल मिलता है, हमारा मेरी बात लाखों में सुनो।
मेरी बात सुनो, तुम्हारा जो अगर है, नहीं मेरे सुनो ना, आप लो यार, जवाब तो ले लो। आपका हर दूसरा बंदा जाहिल है। ये देखो, ये कितने बैठे हुए हो आप टिकटॉक पे, इसमें तकरीबन 90% जाहिल हो तुम लोग। तुम्हारे हंसने से पता आपका कितना रेशो है जो 1 million to 1, यानी You 1 like मिलियन this? से 1 मिलियन जाहिल है? नहीं होता ना, साहब नहीं आंदा, मैं क्या अच्छा 1 मिलियन आप हैं? अच्छा जमील साहब मेरी बात सुने, ये जो पोस्टर लिखा हुआ है आपके सामने, कितनी देखो, शर्म की बात है। अगर मेरी हम- बात सुने, मेरे बच्चे अगर जानते होते ना 10 जुबानें और 10 जुबानों में वो कुरान ट्रांसलेट कर सकते होते, मैं उनको, यकीन करें, ये पोस्टर देखता ना मेरी कौम के खिलाफ, मैं उनको कोड़ा लेके मार के कहता उतना उठो जाके मुकाबला करो, साडी कौम तो लाई फिरदी होते। अगर आपके बिल्कुल पास इस तरह के बच्चे हैं, मेरी बात सुन लेना, मेरी बात सुन ले, तो अगर सुन ले, आपके पास इस तरह के बच्चे हैं तो उनको मैदान में लाएं। ये देखें भाट साहब मुंह काला करवा रहे हैं आपका। वो मेरी बात सुनो, ये माओ बहनों की गालियां निकालने वाले और झूठे और कोई गाली माइक नहीं पे बात करने, हमारी सिविलाइज्ड कौम इधर आएगी? तुम्हें शौक है हमारे साथ बात करने का ना, तो पाकिस्तान में वो नेशनल टीवी लाओ और अपने आलम लेके आओ, जैसे तुम असेंबली में लाए थे, उस तरह आओ एंड ओपनली उसे उलमा से तो आप ਸੁਣੋ ਰਹਿਮਤ ਬਾਬਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਭੱਜ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਸਸੜੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਦਾ इसलिए कि या वो फिर आपके ना ਦਫਾ ਹੋਇਆ ਗੁਸਾਹੀ ਕਰਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁੱਤਿਆ ਤੇ ਕਰਕੇ ਨੱਸ ਗਿਆ ਸੀ ਅਮਰ ਭਾਈ। इधर आके ना इनके बंदे 90% वो रोते हैं कि हमें क्यों निकाला, हमें क्यों निकाला, तो इसलिए उनको ये बताया अब जाता तो काम लगे हैं, मैं किस टाइम का चौक के साथ चलना ही बेवकूफ हूँ। आमिर भाई इजाजत दें तो मैं रेफरेंस पढ़ दूं जहां इन्होंने कहा था कार्रवाई पब्लिश ना करें। बल्कि उसका स्कैन लगा दें। हाँ, स्कैन भी इंशाल्लाह मैं लगा दूंगा। ये सफ़ा नंबर 1506 है, 24 अगस्त 1974 की कार्रवाई है। हाँ। और चेयरमैन जो स्पीकर था वो कह रहा है कि दे कैन आस्क थ्रू ए कमीशन और मे बी सेंट ए क्वेरी और मे बी। नेक्स्ट पॉइंट विच आई वांट टू मेक आल्सो क्लियर that there shall be no disclosure of the proceedings of committee for any purpose or for any comments till we release all the evidence which have been recorded. Till then, there cannot be reporting of even the comments as to how the proceedings continued, and what was the purpose, and what was the object. What was in no manner can any comment be made by the members of. इसके बाद वो याह्या बुख्तियार ने इंटरप्ट किया, कहा कोई कमेंट्स इस पर, ये मिर्जा नासिर को कहा है कि आप इसके बारे, ये जवाब दिया था उन्होंने सहाफ़ियों को कि आप फैसले की बात करें, तो मिर्जा नासिर अहमद ने उर्दू में जवाब दिया, हाँ हाँ अशात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए इसकी। वाह वाह। कहा हाँ हाँ अशात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए इसकी। सुन लो जी जमील साहब। और जनाब चेयरमैन ने फिर कहा कि ठीक है अशात भी और फिर कमेंट्स भी नहीं होने चाहिए। तो मिर्जा नासिर ने कहा हाँ हाँ अशात में कमेंट्स वगैरह भी नहीं होने चाहिए, आपस में तुम हम बात कर लेते हैं। कहते हैं आपस में तुम हम बात कर लेते हैं, पब्लिश नहीं होनी चाहिए। और ये बंदे बाहर आके लोगों को सालों तक अंदर मीटिंगों में बैठ के जिनसे चंदा लेना होता था उनको कहते थे कि अगर ये कार्रवाई छाप देते तो आधा पाकिस्तान मरजाई हो जाना। नहीं नहीं आधा नहीं, ये आप सुन ले इस बात को, मैं तो असल एविडेंस दिखाता हूँ लोगों को, आप भी सुन। दलाइल, इतने कवी दलाइल और जो अकली भी हैं और नकली भी, उनके बाद ये नतीजा तुम निकाल कैसे सकते हो कि जमात अहमदिया रास्ते पर नहीं। चुनाचे उसकी पेशबंदी ये कर ली गई कि जमात को कानूनन हुक्मन मजबूर किया गया कि जो भी कार्रवाई हो रही है उसका कोई नोट, कोई रिकॉर्डिंग वो अपने पास नहीं रखेंगे। और ये फैसला कर लिया गया कि इस कार्रवाई को
दुनिया में जाहिर नहीं होने देना। उस कार्रवाई का नतीजा क्या था वो इस बात से भी जाहिर हो सकता है। 2 साल हो गए ना एक नेशनल असेंबली के मेंबर से एक मौके पर सवाल हुआ साहब माइक म्यूट कीजिए। उस तहरीर को, उस कार्रवाई को शायद क्यों नहीं करवाते? जब इतने झूठे लोग हैं कि सारी नेशनल असेंबली ने आपके बयान के मुताबिक मुत्तफ़िक़ा फैसला दे दिया है कि जमात अहमदिया गलत है अपने अकायद के लिहाज से, इसका इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं, तो फिर शाया करें और इनका झूठ दुनिया पर ज़ाहिर करें। तो उन्होंने हंस के जवाब दिया कि शाया करें, शुक्र करो कि हम शाया नहीं करते, अगर हम शाया कर दें तो आधा पाकिस्तान अहमदी हो जाए। मैं समझता हूँ आधा तो उनकी कसर नफ्सी थी। अगर हकीकतन पाकिस्तान के शरीफ अवाम तक जमात अहमदिया का मौक़िफ़ पहुँच जाए तो कोई वजह ही नहीं कि सारा पाकिस्तान अहमदी ना हो जाए। लें जी आमिर भाई, आपने सुन लिया कितना झूठ बोला इस आदमी ने कि हमें मजबूर किया गया कि पब्लिश ना करो। लो भाई, जमील साहब किधर गए? जमील साहब ये सुन लिया आपने अपने खलीफा की आवाज। वहां पर यार आपके खलीफा साहब कह के आए हैं, खुद अपनी राय देकर आए हैं कि हमारी राय में इसको शाया ना करें। बिल्कुल शाया मत करें, ये का लफ्ज जी, उनके लफ्ज सुने। मैं दोबारा दोहराता हूँ कि वो जब सहाफियों ने पूछा ना कि हमने समरी देनी है, तो उन्होंने कहा कि उनसे कि मैंने पढ़ दिया ना कि वो इंग्लिश में कमेंट्स जो थे, नेक्स्ट पॉइंट विच आई वांट टू मेक also clear that there shall be no disclosure of the proceedings of the committee for any purpose or for any comments till we release all the evidence which we have recorded. तो याह्या बुख्तियार ने, इसके बाद भी है इंग्लिश में एक और लाइन, याह्या बुख्तियार ने इसके पर कहा कि कोई कमेंट्स इस पर मिर्जा नासिर से डायरेक्ट, मिर्जा नासिर हाँ बिल्कुल इशाअत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए इसकी, ये जी उसके लफ्ज है मिर्जा ताहिर के। और चेयरमैन ने कहा, फिर पूछा सवालिया अंदाज में, इशाअत भी और कमेंट्स भी नहीं होने चाहिए इस पर। ये पूछा क्या ये सिर्फ इशाअत का कह रहे हो या कमेंट्स का? मिर्जा नासिर हाँ इशाअत में कमेंट्स वगैरह भी नहीं होने चाहिए, आपस में तुम हम बात कर लेते हैं। वाह, ये है जी। और अब ये 1506 और 1507 सफा है, 24 अगस्त 1974 की कार्रवाई है। मुझे आमिर भाई इनसे जरा एक बात पूछने कि इतना झूठ क्यों बोलते हैं? झूठ पर ही तो सारा धंधा चल रहा है डॉक्टर साहब। झूठ ही तो इनका ओढ़ना और बिछोना है। झूठ के अलावा कुछ पेश करने के लिए है ही नहीं। देखें, अब आंखों के सामने झूठ रख दिया गया है कि वहाँ ये खुद राय देकर आए हैं कि आप इसको ना छापें, और बाहर आके कहते हैं कि जमात अहमदिया को फोर्स कर दिया, मजबूर कर दिया कि आप कोई। भाई पहली तो बात यह है कि फोर्स आपको कोई कर ही नहीं सकता था। आप अपने घर में जाके नोट्स ले सकते थे, कमेंट्स लिख सकते थे, याददाश्त अपनी महफूज कर सकते थे। पहली तो बात यह है, घर में तो कोई पुलिस नहीं आपको चेक कर रही थी। आके किताब बाहर आकर आप यूके आप 84 में आ गए, उस पर किताब छाप सकते थे कि ये सवाल जवाब हुए। नहीं किया, सिर्फ लोगों से चंदा बटोरने के लिए ये धोखा देते रहे। अगर ये कार्रवाई सामने आ जाए तो आधा तो कहते हैं कफ्से नफसी से काम लिया है, पूरा ही पाकिस्तान हो जाना है मरदाई। और मरदाइयो, और खुदा दा ना है, अल्लाह ताला ने तो अशरफुल मखलूकात बनाया यार। और सोचो सही, आंखों से देखो सही, आपका खलीफा आपके सामने झूठ बोल रहा है। वहां असेंबली के अंदर क्या कह के आया और बाहर आके आपको वीडियो में क्या कहता रहा। कितनी शर्मनाक बात है। मेरे भाई अस्सलाम वालेकुम, की हाल है? ठीक हो यार? इन्हां दी बराड़ ते ना जितना तीसरा चौथा दिन है जाईदा, गल्लां भी सुनी दियां ने, करी दियां मैंने गल्लां। लेकिन एक गल जो फिर दिल च आंदी है ना, मैं अपने इमाम मौला अली वाल ध्यान मारना ना, तो यकीन करो फिर ना ही दिल कायम हो जाता है। क्योंकि जिहड़ी ये गल करते हैं वो सोचना भी गुनाह है, कुफर है। सोचना भी कुफर, सोचते अपने इख्तियार से नहीं, जो दिन चकिए सोच अपने इख्तियार विच है कि जिसे तुसीं इन्हां नाल गल करते हो तो तुहानूं दलील देंदे ने। यार एडा सोहना साडा दीन, एडा सोहना, पता नहीं इन्होंने कित्थों एक नवा बंदा कढ़ के लैंदा है तो किहड़े चक्करां च पे ने। जे मेरी एक मरदई भरा सुनदा पिया तो तौबा कर लै, माफ़ी मंग,
ਤੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸੱਤੇ ਖੈਰਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਉਧਰ ਲਾਲੇ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਨ ਚੱਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰਾਚੀ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਜੈ ਨੇ ਪਰ ਪੌੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵੱਲ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ, ਵੇਖੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਜੇ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਐਨ ਆਪਣਾ ਆਪ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਚੱਕ ਸਿਕੰਦਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੂਰ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ? ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਚੱਕ ਸਿਕੰਦਰ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਦੂਰ ਹੈ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਸਲੇ ਤੇ? 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਦਾ ਮਸਾ ਮਾਰ ਕੇ। ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਸੀ ਨਾ ਰਸ਼ ਰੁਸ਼। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ, ਜੇ ਲੱਭਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਉਹ ਛੁਪ ਕੇ ਹੀ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਅਵਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਥੋੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 1974 ਚ ਜਦੋਂ ਅੱਗਾਂ ਸ਼ੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਰੱਬੇ ਟੁਰ ਗਏ ਉੱਠ ਕੇ ਨਸਨੇ ਕਸ। ਅੱਛਾ, 74 ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਆਹੋ 74 ਚ ਉੱਥੇ ਅੱਗਾਂ ਉੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਗੱਲ ਅਸਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈਜਾਨ ਕੁਰਾਨ ਆਂਦਾ ਹੈ ਹਾਤੂ ਬੁਰਹਾਨ ਤੁਮ ਸਾਦਕੀ, ਜੇ ਸੱਚੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦਲੀਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲੀਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੇ ਦਲੀਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਖੱਪਨੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸੁਬਾਹ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਬਤੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਦੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੰਦੇ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਝੂਠਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਕਿਆ ਖਲੀਫੇ ਨੇ ਵੇਖੋ ਝੂਠ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਪੇ ਹਟਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਨਾ ਛੰਦਾ ਚਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਪਸਾਰੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਜਕੜੇ ਜੁਕੜੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਐਡਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਬੰਦੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये अपना ये दीना चक साहब वाले हैं, ये इनसे बात करनी थी मैंने। आप बात करें, मैंने उनका माइक म्यूट किया क्योंकि शोर उनके माइक में उनके हैं। तो ये इनकी मेरे ख्याल है जहाँ तक मेरा अफजा साथ दे रहा है, तो इनकी एक ब्रॉड पर एक साहिब से बात हुई थी, तो जवाब में जो उन्होंने कब्र खोदने के हवाले से, तो ये वही साहिब हैं जो उनको, जो मैं सिर्फ ये था कि उन्होंने जिनको जवाब दिया था वो मैं सही समझाऊं जो उन्होंने भी इस जवाब में कहा था? ये नहीं पता। हाँ जी, आप माइक खोलें जी, दीना चक वाले हो। ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕ ਮੈਂ ਮਿਊਟ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੋਰ ਬੜਾ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਵਰ ਪੱਟ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਜੇ ਸੱਚਾ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਮੁਬਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਲਮ दीन है तो वाकई गल इस तरह ही दसियो जी। चलिए वो आपका मौक़िफ़ था, लेकिन जो उन्होंने जवाब दिया उससे आमिर नज़ीर साहब जो मैंने यही साथी आदमी के इत्तेफाक से नज़र आ गए। तो ये तो लाज़िम बात है कि जिस बंदे का नाम लिया ये तो उनको मानते ही नहीं है ना। तो ये तो, लेकिन वो जो दावा कर रहे थे कि हम मानते हैं, लेकिन वो जिनको बज़ाहिर मानते हैं, लेकिन उन्होंने जवाबी कहा कि फिर उधर भी जाकर कब्र खुदवाई जाए। तो मैंने जो कल कहा था यही मुझे वो तलाश थी, तो आज वो मिल गए हैं। तो उनका जवाब ये था कि जनाब उधर भी, तो लाज़िम बात है जो जिसको नहीं मानता वो तो कह सकता है, लेकिन जो मानता हो और फिर कह के खुदवाओ, उससे आप अंदाज़ा कर लें कि हकीकत कुछ और है फिर। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बस ये थे, ये दीना चक वाले साहब थे। ठीक है, अच्छा इनके साथ बात करें। हाँ ठीक है, जारी रखें आमिर नज़ीर साहब, शुक्रिया आपका। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਨਾ ਪੂਰੀ, ਸਮਝਾਓ ਨਾ ਭਾਈ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਦਾਵਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਵਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਗੱਲ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕਵਰ ਪੱਟਣ ਵਾਲੀ, ਕਵਰ ਪੱਟ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਖਲੀਫਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਨਾਨ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਬਰ ਪੱਟ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ, ਇਹਨੇ ਕਬਰ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਰੋਗ ਬਰਗਦਨ ਰਾਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਖਲੀਫਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ AK ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਹੀਏ ਤੇ ਉਹ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਤਬਲੀਗ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵੀ ਦੱਸਦੇ।
ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਤੇ ਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਟਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਤਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਬਸ ਅੱਲਾ ਕਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਈ ਜੈਲੀ ਪੀਰ ਬਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੈਲੀ ਪੀਰਖਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਇਆ। ਲੋਕ ਝੱਲੇ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਯਾਰ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਭਈ ਅੱਜ ਉਹ ਵਕਤ ਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆਖੇ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਥੱਲੋਂ ਤੇਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਂਦਾ ਵੀ 70-80 ਫੁੱਦੂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਾਹਿਲਾਨਾ ਜਿਹਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਹਨੇਰਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਲਬੱਤਾ ਲੋਕ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਟਿਕਟਾਕ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਵਟਸਐਪ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿੱਛਾਂ ਭਿੱਟਦੇ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚੰਦ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੋਕ ਹਟ ਜਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛਾਂ, ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ, ਇੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਟੋਟਲ। ਐਸੇ ਖਲੀਫਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਈ, ਮੈਂ ਆਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸੁਣਾਓ ਜੀ ਕਬ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਕੀ ਆਂਦਾ ਇਹ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਦ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕਬ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਅਹਿਮਦੀ ਆਪ? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲੈਂਦਾ ਜੀ? ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਆਪਕੋ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਹਦੀਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੂਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਲੀਮ ਹੈ ਜਾਂ ਇਲਮ ਜਾਂ ਦੀਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇਹਦੀ ਇਨਕਾਰੀ ਕਰੋ ਤੇ ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਤੇ ਆਇਤਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਵਾਪਸ, ਇਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सुनाओ मौलवी क्या हाल है ਤੁਹਾਡਾ? ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਗੰਦ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਜੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕਰੋ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਚੰਦਾ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਉਥੋਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਚੋਂ 4 ਕਿ 5 ਹੱਡੀਆਂ ਨੇ ਗਾਲਬਾਂ ਨੇ ਲੈ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਿਲਾਫਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਜਿਸਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੱਟੀ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੋਚੀ ਜੇ ਪਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਸੂਲ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਸੱਚਾ, ਰਸੂਲ ਵੀ ਸੱਚੇ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਸਾਡੀ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਦਿਲ 'ਚ ਸ਼ੱਕ ਪਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਆਮ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸੋਚਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸਾਹਿਬ। ਚਲੋ ਪੇ ਕੱਢਣ ਫਿਰ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ, ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਤੀ ਮੈਂਬਰ ਰਸੂਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹਲੇ ਬੈਤ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 4-5 ਖਾ ਲਓ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂਬਰ ਰਸੂਲ ਤੇ? ਹਲਾਲ ਫੂਡ ਆਇਓ ਖੋਲੋ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਪੈਣ ਤੇ ਖੈਰ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗਾਲਾਂ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਉਹ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। अमर भाई मैं एक सवाल किया सी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। दोबारा कर लो। शायद तुसी नहीं देखा, क्या किसी नबी ने कोई अपने हथा ना अपने कोई किताब लिखी है कोई आज तक? सारे नबी उम्मी सन सिवाय झूठियां मदइयां ने नबूवत दे। बस ठीक हो, सारे उम्मी हुंदे ने जेड़े नबी ने ना। जी जी। ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਜਿਹੜਾ ਮੁਅੱਲਮ ਹੈ ਉਹ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਲੀਲ ਉਸਤਾਦ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੇ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦੀਕਾ ਵਾਸਤੇ? ਦਲੀਲਾਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਨਬੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਰੱਬ ਆਪ ਤਾਲੀਮ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਸਟਰਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਬਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਹਦੀਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਬਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਸਟਰ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਫਜ਼ਲ ਲਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਫਜ਼ਲ ਉੱਲਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹਾਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਫਜ਼ਲ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਦਲੀਲ ਉੱਥੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਵਾਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਫਜ਼ਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਤੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੇ, ਅਗਾਂ ਕਿਰੇ ਗਏ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਰੇ ਇਹ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਲਿਖਾਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪਿਆ ਨਾ ਮੇਰੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਢੀਠ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦੀ ਹਦੀਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ 'ਚ ਯਾ ਨਾ ਰਵੇ ਫਿਰ ਜੋ ਚਾਹੀ ਕਰ, ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦੇ ਕਰੀ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸੈਯਦ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਲੀਫਾ ਦਾ, ਇਹ ਚੌਥੇ ਖਲੀਫਾ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਸਫਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਨਾ ਛਾਪਿਓ। ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਛਾਪ ਛੱਡਦੇ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਾਪਦੇ? ਛਾਪਦੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਬੰਦਿਆਂ ਮਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ यूके ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਪੇ? पढ़ना उस्ताद से सीखने के बाद नहीं हो रही। आयदा ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਅਟਕਲ ਪੱਚੂ ਲਾਓ, ਕੁਰਾਨ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਸਤਾਦ ਸੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਕੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਮਾਸਟਰ ਆਏ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਲਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਜ਼ਲ ਲਾਈ ਕੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਹੀ ਉਸਤਾਦ ਹੁੰਦਾ। ਨਬੀ ਮਾਸਟਰਾਂ ਕੋਲ ਮਾਰ ਖਾ ਕੇ ਨਬੀ ਬਣਨ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਬੀ ਕਿੰਨੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਜੀ ਇਟਲੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਟਲੀ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ यूके ਦਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਧਰ ਦੂਜੇ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਬੜੇ ਮਛਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਸਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਉੱਥੇ? ਉਹ यूके ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 15-16 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਛਰੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੂਮਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਡ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ का तर्जुमा जो ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਈ ਸਹੀ ਨੇ, ਕਈ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਕਈ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹ ਕੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਜੇ